So, See, hello. I wish to, invest in an AI, but I've already invested in a PMS and I have my direct investments running as well. So I invest directly into markets as well, Mm-hmm. uh, along with the PMS. And that I've been investing in a PMS and which didn't perform well over the last 7.5 years. Therefore, I got out of the PMS and moved to another PMS. Mm-hmm. Now, most of my investments have been invested directly by me into the market. Correct. Very nice. Okay. Right, and I only invest in the small cap space. I don't invest in any other space at all. Okay. Not even in the mid cap space. Okay. So I want to diversify my investments, and therefore I was looking for an AIF. Mm-hmm. And I was looking for an AIF that is in the category 3 space. A category 3 long AIF, Mm-hmm. which invests in the unlisted space as well. Because then I'll be able to diversify my investments a little. Correct. So, I've some guidance and help. Of course, there are a lot of AIFs. That I've also approached. Yes, I know the leading AIFs as well. Yes. Of course, it's a space that I'm not very well versed in. Mm-hmm. Therefore, I needed some help, and I think it's always good to go through a third-party seller because then it's easier to gain access to the top management as well. Agreed. I take your point. And it's easier to get information on a more regular basis. Yes. So you're based out in Bombay by any chance, or No. I live in New Delhi. Sorry, in New Delhi. Okay. So we can talk on those lines at a length, sir. Wherein you said maybe you have gone through a private equity or a small other funds also. But since what we do is we have a tie-up with 20-25 AMCs, and what I have been advising alternate investment to all my clients since 2016. I was in Dubai for 10 years, and I'm in a year. We have a plus of 200 crores of book in only alternate investment, which I built in 2.5 years here. And I have been in touch with most of the fund managers, or bigger fund managers, as well as everybody who is there in the market who is offering something new, wherein my investor can go into that. Wherein I evaluate that. I think if suppose that industry or that sector or that new age company looks better at this point of time investing, and I am very bullish on only private equity side, because I think there the money can be made there because of the entire private equity. What do you mean? When you so private equity in the sense, through fund we can enter into some category 2 AIF, is it? Yes, category 2 AIF. No, I will not invest in a category 2 AIF because there is a lot of uncertainty and there is a lot of risk compared to the category 3 AIF. Yeah, so what happens now in the category 3 AIF also, you are into listed equity, plus there are certain funds which has an option of blended investment in category 3 also, wherein 30% of the money can go to private equity. Suppose they like any company which is privately held, and where the promoter doesn't want to go to the doesn't want to raise money from outside. But then there are a lot of companies in the category 3 space, right? Who do this blending form of investment, but who also do a lot of investments in the anchor book space and do a lot of anchor book investing as well, right? Yes. Anchor book also, QIB also. So those they depends. Like if suppose they go through anchor, maybe they think after the company getting listed, they have an option of exiting in first 30 days 50% and then 90 days 100%. तो वो भी जो आता है वो भी 30% के अलावा होता है ना, वो तो 30% के अलावा होगा ना, मतलब हाँ, मतलब वो डिपेंड करता है. अगर फंड का जो इन्वेस्टमेंट टीम है वो पूरा नेटवर्क से चलता है कि हाउ टू गेट. सो दे सपोज दे थिंक दिस कंपनी एज अ एंकर वी शुड पार्टिसिपेट, they will participate because all these are connected through merchant bankers. तो मर्चेंट बैंकर का काम ये है कि आईपीओ लाए, उसमें एंकर को लाए, क्यूआईबी को अट्रैक्ट करे, रिटेल को अट्रैक्ट करे लास्ट में, because retail comes at a very late stage wherein he is the only person who is giving exit to everybody and the mutual fund now. So that, and because of this, I've been in touch with a few AIs who do a lot of anchor book investing. Yes. Who also invest in these are all category 3 AIs that I'm talking about. Correct. And they also do 30% of the investing into the unlisted space. Some are investing directly into stocks, which are also fairly stocks that I won't normally invest in. Although I invest in the small cap space, but those stocks are fairly small or unheard of. Correct. So there is an opportunity, sort of their expertise to make money in some of those unlisted stocks. Correct. At the same time, they invest. They do a lot of anchor book investing, wherein there is an opportunity, right? To make money. Quickly. Yes. So see how it is. Now, what's your name? I'm sorry, Manoj. What happens? There are every stage at which AIFs are designed.
maybe you come at VC or a pre-seed funding level, or at a mid-stage or a late stage, No, or a late stage. So everything depends. Category 1 AIF, I mean. Yeah. No. The category 1, even I am. See, I am. No, I'll not even go into a category 2 AIF because I don't have the risk appetite. I mean, correct. at the moment, I mean. Correct. So what we can do is see. आपकी होनी चाहिए ना, and Yes, I don't think I that's the agree. risk appetite. I to agree. invest in a category 2 No, AIF. you can look at, see, some of the Cat 2, Cat 3 AIFs, no, which has a blended approach. You can look, see, Right. depends how it is not. It depends on the AMC, which has a huge network of sourcing leads or sourcing those. Right. So if any of the fund houses which are managing family office also, they also get some Right. leads from their family office in terms of company which is looking for a fund, or whether company is doing Right. good. So we Right. have to get attached to some of the bigger AMCs or a network AMCs which can source this Right. list without any cost. See, it depends. When you source a lead on a private equity side also, you have to pay some cost to the middleman. But if the in-house team Right. is very strong, they will source their on their own with their network, with their connects. So we have to be attached Right. with some of these people wherein very at the late stage, where the company is for an IPO for 18 months, within 24 months the IPO is visible. We can enter Right. at those levels, although your risk is very minimal, because every risk which is Right. there is at the VC stage, at the mid stage. But once the company is matured and ready for IPO, at that time the Right. risk of losing capital No, is but the zero. issue with the Actually. category 2, but the issue with the category 2 AIF is that, I mean, I will get a report on a quarterly basis, right? I mean, with the PMS, I get a report on a daily basis, right? Yeah, so see, So- PMS, so there is how all- Nikunj actually, PMS, I actually am not very, since 2016, I've never advised any PMS to my investors, to be honest. Right. The reason Why is behind that that? is because of the churning. Yeah. What happens now, I used to do that, but then I saw after, see, recently I've received one PMS from UK. One of my clients, he has Right. given 3 crore 50 lakhs rupees to his to the PMS team. The value Right. of that after 1 year is 3 crore 58 lakhs, and the cost Right. he has paid for management or the brokerage is 11 lakhs. So his money, which is there with Alright. them from more than 1 year, has reached only 8 lakh But rupees in the why is he appreciation. paying so much? I mean, why is he paying so much? No. So what happens? No, see, you cannot control the management fees is there, plus the churning is there. Any portfolio, see, what is equity The market? management fee would only be anywhere from 1 to 2%, right? I mean, wouldn't be more than Yeah, that, but then right? I saw the statement. I was surprised to know that there was 11 lakh from 24,000 rupees towards fees. उसको तो बेवकूफ बना दिया, उसको तो हाँ, सीधा नहीं तो बेवकूफ बना क्या दिया। होता है ना निकुंज के, अभी क्या है ना, इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता। इन्वेस्टर को जब मिलता है तब वो उसको लगता है हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। आपको पता है पीएमएस में क्या होता है कि एक मॉडल पोर्टफोलियो होता है, उस पे इन्वेस्ट करते हैं, प्लस आपने जो कंपनी में पोर्टफोलियो में अगर 20, 30, 25 कंपनी, आज की तारीख में तो चलो पहले 35 कंपनी होती थी, अभी कोई 18 कर रहा है, कोई 12 कर रहा है, 24 कर रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट तो एक व्यू है, राइट? यू आर टेकिंग वन व्यू कि दिस सेक्टर, दिस कंपनी विल डू गुड. So you find Right. good company at that sector, and then you filter it down to if that falls into your bucket 1, then it comes to your portfolio. Right. Correct. Now Right. he is taking a view. So view might be right, might be wrong also. If it goes right, Right. returns are there. But if in 25 companies, if your view is not right in 4, 5 also, the entire profit Right. which are earned is gone to the loss-making company, right? So it will keep on eating up In the profits of the other in company. the last 1 year, I mean, nothing. No, was 15 there. months, so there is no movement. See, there is in last 15 Right. months, No market one has made not money, moved. right? Yes, I mean, yes. So, but because then, even the portfolio, because what's happened is that at the portfolio level, the market may not have gone down much. I mean, may just have gone down by 6-7%. I mean, I don't remember. I mean, but at the index level, the market may have gone down by 6-7%. At the portfolio level, it would have gone down a lot more. I mean, yes, it would have hurt the definitely. portfolio. Because see, what happened, na, Nikunj, you also in the market, I am also in the market. Last 2019 till date 2023, most of the people made good amount of money because all valuations were so high. कहाँ बना था यार? नहीं, 19-20 नहीं, आप कोविड के बाद बना था। कोविड के बाद 19-20 में जब आए, लेकिन तभी पीपल हैव स्टार्टेड। 20 के बाद बना ना। यस, तो पीपल हैव स्टार्टेड के भाई हम लोग अभी है ना, मैं आधे लोगों से बात करता हूँ ना, वो मुझे बोलते हैं 20-30% का रिटर्न तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, आपको फंड मैनेजर को क्यों देना है? मैं बोला सर आपने 20-30% का रिटर्न कब बनाया? बोला लास्ट 3-4 साल से मैं इन्वेस्टेड हूँ। सर आप बोला 10-15 4 साल। देखिए मेरे को भी ज्यादा नॉलेज नहीं है मतलब मार्केट की, मैं इसीलिए मतलब एएफ और पीएमएस में ज्यादा करना चाहता हूँ। तो फैक्ट ये है कि मैंने भी जो मार्केट में 59x बना लिया है। मतलब कि अगर मैंने 1 करोड़ 25 लाख इन्वेस्ट करा था मतलब 2018 में, तो 19-20 में तो गिरा, 18 में थोड़ा सा बड़ा था, फिर 19-20 मतलब 18 और 17 में मतलब मैं गया था सितंबर में, थोड़ा सा बड़ा था उसमें सितंबर से लेके मतलब जनवरी वैन पे था। फिर उसके बाद
27, 20, 26, 27 मंथ तक तो काफी गिर गया था। करेक्ट। तो निकुंज क्या होता है ना कि स्मॉल कैप स्पेस तो और गिर गया, और स्पेस और पिछले जो 4 साल थे, मतलब ये अक्टूबर 2024 तक, तो 4.5 साल इससे मेरा रिटर्न जो है 59 टाइम बन गया, और मेरे को तो कुछ नॉलेज भी नहीं है मार्केट की। तो मार्केट ने ये रिटर्न जो दिया है वो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब मेरे को जो पीएमएस होल्ड वाला है, किसी पीएमएस का रिटर्न बना ही नहीं सकता है, मतलब नहीं बना सकता, क्योंकि वो कोई नहीं बना सकता। नहीं, क्योंकि इसकी वजह लग गया। हाँ, करेक्ट। नहीं, ऐसे क्या हुआ था ना, ये जो आप बोल रहे हो ना, वैसे मेरे 50 लोगों से बात होती है तो बोलते कि हम इतना, प्लस सर आने वाले टाइम में आप ये नहीं कर पाओगे जो हो गया। आने वाले टाइम में निफ्टी अभी कंसोलिडेशन पे है ऑलरेडी, आप देखिए आपको ग्रोथ प्लस 12-13%, अगर 2-3% का अच्छा फंड मैनेजर होगा तो आपको लिस्टेड इक्विटी में 3-4% एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की कोशिश करेगा, उसने रिस्क अच्छे से मैनेज किया तो। सी इक्विटी रिटर्न, आई थिंक वेल मैनेज रिस्क विल गिव यू रिटर्न इज बेस्ड ऑन वेल मैनेज रिस्क, मेरा ये मानना है। रिस्क को अच्छे से मैनेज करो तो ही रिटर्न बनेगा, ठीक है। अब होता क्या है, अच्छा फंड मैनेजर होगा जिसको एक्सपीरियंस है तो वो लॉन्ग टर्म आपको पहले ही बोल देगा कि आप आ रहे हो मेरे साथ 6-60 महीने का टाइम देते हो तो आओ, वरना आओ मत। ये अच्छा फंड मैनेजर जिसको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको इसमें तो 4-5 साल देना ही पड़ेगा। हाँ, देना ही पड़ेगा ना, वो नहीं बनता है पैसे से। अभी मैं क्या करता हूँ ना, प्राइवेट इक्विटी में इसके लिए मेरे क्लाइंट को बोलता हूँ कि अभी क्या है ना, कुछ आप भी जानते होंगे, देयर आर बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, इंडिया इज अ टोटल कंजम्पशन स्टोरी, राइट। आज जो हमारे जेनजी है, एवरेज एज इज 28 ईयर्स इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। दे आर नाउ चेंजिंग प्रोडक्ट्स एवरी डे, इफ यू गिव देम न्यू प्रोडक्ट एवरी डे मॉर्निंग, दे आर रेडी टू बाय दैट। And why? Because their entire consumption behavior has changed in India, and which is why most of the new age companies are coming into market and which are disturbing the bigger players. Now that if you see larger players जो आज अभी एक सपोज कोई बड़ा यूनिलीवर है फॉर एग्जांपल, पहले क्या था, आज से 20-25 साल पहले कि 60-61 ईयर्स तक का एवरेज था जब उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता उनके बिजनेस को, ठीक है। वो भले इनोवेशन लाए नहीं लाए, वो चलेंगे, सर्वाइव करेंगे। आज वो कम हो गए, 15 ईयर्स पे आ गए। इफ यू आर नॉट इनोवेटिव एंड यू आर नॉट चेंजिंग योर प्रोडक्ट, यू विल नॉट बी सर्वाइविंग इन दिस मार्केट। तो इतना डायनेमिक चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमको क्या है ना कि प्राइवेट इक्विटी में इसके लिए बोलता, अगर मेरे पोर्टफोलियो में 10 से 12 कंपनी है, मुझे खाली 4 कंपनी मल्टीबैगर चाहिए। जो 4 कंपनी मल्टीबैगर होगी और मेरा पैसा जो फॉरेन का आ रहा है, FII, अभी देखिए, अभी एक मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, KKR इज अ US बेस्ड VC फंड, वो इन्वेस्टेड इन मैत्री हॉस्पिटल, दिस इज थर्ड हॉस्पिटल, दे हैव इन्वेस्टेड 1100 करोड़, ठीक है। दिस इज थर्ड हॉस्पिटल। अभी आपने हेल्थ केयर देखा होगा, तो मोस्ट ऑफ दिस प्राइवेट इक्विटीज आर इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ इंडिया। व्हाई? Because now that people are holding insurance policies after COVID, it was not there. Today government hospitals, आज अपनी total 70,000 hospitals है इंडिया में, जिसमें से खाली 1500 are under the parameters of benchmark, जहाँ पे सब फैसिलिटीज है। ओनली 1500, 12 to 1500, ठीक है। आज वो सेक्टर को प्राइवेट इक्विटी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेक्टर में आज इंश्योरेंस आएगा, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी अभी बड़े बड़े मशीनरीज में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास जो पेशेंट आएगा उसके पास कैपेसिटी है इंश्योरेंस के थ्रू पैसा देने की, पहले नहीं था, ठीक है। तो दो सेक्टर, तो मैं ये सोचता हूँ कि जैसे एरोस्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, पर्सनल इंजीनियरिंग हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अगर मुझे प्राइवेटली हेल्ड कंपनी कोई वहाँ पे मिल जाती है जो एक कंपोनेंट भी किसको सप्लाई मैंने करे हैं, मतलब एक तो मतलब सेमीकंडक्टर कंपनी में करा है, वेरी नाइस सेंटर में करा है, एक रेयर अर्थ मैग्नेट की कंपनी है उसमें करे, जो वेरी नाइस उसमें करे। अभी मतलब और मैं कर सकता हूँ, मेरे पास पैसे मतलब अक्टूबर में तो आ ही जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में बोनस वाला 3-4 महीने की जो सैलरी है वो भी मतलब की पड़ी हुई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं AIF में किसी इन्वेस्ट करूँ, मतलब दिवाली के बाद। देखो मेजर, हाँ नहीं, नो वरीज, मैं ना आपको डेस्क शेयर भी करूंगा, मैं मनोज को बोलूंगा। मैं ना एक वैल्यू क्वेस्ट करके एक फंड है, वैल्यू क्वेस्ट का 3 फंड ही है, जिसमें हम लोग डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एरोस्पेस में, पर्सनल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ये रिन्यूएबल एनर्जी में। ये 4 सेक्टर, जो 5 सेक्टर है ना, वो आने वाले टाइम में तो ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो जाएगा? मतलब नहीं, वो सेक्टर बेस्ड है, आई एग्री, लेकिन होता क्या है ना कि मेरे को कोई सेक्टर वाले उसमें नहीं करना है, जो सिर्फ नहीं, इसमें ना ओपन वाले भी है। ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, देयर आर ओपन आल्सो वेरिन, जहाँ पे लोगों को जो सेक्टर में अच्छा मिला। मतलब देखो यार, मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या चाहिए मेरे को? रिटर्न चाहिए। करेक्ट। मेरे को पता है कि जितना मैंने रिटर्न बना लिया है वो जरूरी नहीं कि उतना मैं रिटर्न बना सकूं। आने वाले टाइम में सेक्युलर बुलरन था, तो मेरे से भी ज्यादा रिटर्न हजारों लोगों ने बनाया। बराबर है, ठीक है। पर अब जो है, मतलब आज उतना टाइम थोड़ा डिफिकल्ट है, हमेशा नहीं है कि तुक्का लग जाए, बराबर। तो इसलिए मतलब बस मैं होल्ड करके रखता हूं। नहीं, अग्रीड, मेरे को है ना, क्योंकि अभी जो मतलब रिटर्न बने वो होल्ड करने वाले लोग हैं, जिनके मतलब वो थोड़ा जिगरा था, उन्होंने मतलब वो फेज देख लिया और वो मतलब उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाला नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि
मेरे को ऐसे में मैं देखिए रिस्क नहीं निकुंज, होराइजन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होगा, आप मुझे बता सकते हैं? देखिए फिर मैं आपको वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि सबका होराइजन चेंज होता रहता है मार्केट के ऊपर। पर मैंने पिछला पीएमएस जो था उसने मेरे को कोई रिटर्न नहीं दिया, मतलब स्मॉल कैप नहीं था पर वो बहुत ही घटिया पीएमएस था। मतलब इन्वेस्टर उसका बहुत बड़ा था, मतलब हर टीवी शो पे भी आता था। पर अभी हम लोग जो आप बोल रहे हो ना, अगर प्राइवेट इक्विटी या लेट स्टेज आईपीओ उसमें भी जाएंगे ना, तो वो कम से कम 12 मंथ 36 मंथ का हार्ड लॉक इन होता है, उसके बाद फिर ओपन हो जाता है वो टू एंट्री एग्जिट के लिए, ठीक है, जो ब्लेंडेड उसमें देखते हैं हम लोग, उन लोगों का ना मिक्स ऑफ पोर्टफोलियो रहता है जहाँ पे हम लोग कोई सेक्टर स्पेसिफिक नहीं होता है। इतना बता सकता कि मेरा कोई मतलब लाइबिलिटी नहीं है। आई एम नॉट मैरिड, आई एम 43 राइट नाउ, आई एम नॉट मैरिड, आई डोंट हैव एनी किड्स। Okay. My mom's independent. I mean, I live with my mom. I mean, in a family house. Okay. So I don't have any liabilities after that. Okay. जो भी मेरे को आता है, मतलब my mom takes care of all the expenses. I mean, she is the senior most person in the house, so she takes care of most expenses. So whatever salary I mean comes through, I mean, is basically my savings. I mean, so whatever I get cash in hand is generally my savings. Very good. So what is the amount you are looking at? Maybe, and you are comfortable paying in tranches, or you want to pay lump sum, or how it is? I want to pay lump sum. I don't want to pay over. Okay. So the fund should have an option of lump sum or else a drawdown or whatever, but you will go with lump sum, correct ना? राइट, जो कि मतलब ये पता नहीं क्लोज वाले होते हैं या मतलब ओपन। नहीं, इसमें क्या है ना, कैटरी वाले में कैसे होता है ना, जैसे अभी देखिए मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरा जो नेबरिंग ऑफिस है ना, जो जनरली मतलब कैटेगरी थी, जहाँ तक मेरे को पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, वो जनरली तो वो एक्सेप्ट करते हैं ना, लमसम एक्सेप्ट करते हैं ना कैटेगरी। हाँ नहीं, कैटेगरी जो है ना वो डिसाइड करता है, वो कैसे होता है ना, वो फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि किसको लमसम देना, लमसम दे। कैटरी फंड में है ना लमसम आप 30%, मतलब जैसे उनका स्लैब वाइज होता है ना, एवरी क्वार्टर 30%, 40%, जैसे फंड डिसाइड, वो दो ऑप्शन होते हैं। नहीं करना है वो, मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत सारी ये कैटेगरी नहीं, अग्रीड बात करी है, मतलब मैं उसमें एक टाइम के बाद ऐड कर सकता हूँ। हाँ, वो ऐड करने के लिए ऐड अपनी तरफ से कर सकता हूँ, पर मैं लमसम में नहीं करना, मतलब मैं लमसम नहीं, गॉट इट ट्रांचेस में नहीं पे करना चाहता, मैं लमसम पे करना चाहता हूँ। और एक जो चीज फिर कैटरी है ना, हाँ, क्रेडिट का ब्लेंडेड वाला इन्वेस्टमेंट जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो मैं एक दो शेयर करूंगा आपको। और इसमें रिटर्न कितना एक्सपेक्ट, मतलब कितना इन सब ने बनाया है, मतलब जो आप हाँ, ट्रैक रिकॉर्ड वो मिल जाएगा उनका। जी पिछले फंड हो, मतलब कितना बनाया, मतलब आपको थोड़ा आइडिया होगा ना। नहीं, श्योर है ना, वो तो मैं उनके पास निकालूंगा, वो तो मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डीपीआई कितना है, उन्होंने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया इन्वेस्ट करने के बाद, क्या क्या रिस्क में ले सकता हूँ, रिस्क लेने की मेरी एबिलिटी है, पर मेरे को रिटर्न चाहिए 5 साल में, 5 साल तक होल्ड करूंगा, पर मेरे को रिटर्न चाहिए, तो ऐसा आप बताइएगा। नहीं, हाँ नहीं, जिसमें जो आपको मैं जो कैटेगरी में जाओगे ना, वो सब है ना लेट स्टेज वाले है, जहाँ पे प्री आईपीओ इज विजिबल इन नेक्स्ट 24 मंथ, वही कंपनी, तो आपका रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एग्जिट विजिबल है आपको, ठीक है, उसी फंड में जाएंगे। मैं आपको जो एंकर बुक इन्वेस्टिंग भी करते हैं वो, मतलब हाँ नहीं, वो ब्लेंडेड जैसे भी जो भी ऑप्शंस मिलते हैं वो मैं देखता हूँ, आपको देता हूँ, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मुझे, आई विल फाइंड आउट समथिंग बेटर फॉर यू। Sure. ठीक है, I'm in conversation with some of these AIFs on my own as well. Yeah. तो आप भी मेरे को बता दोगे तो मतलब आइडिया हो जाएगा, क्योंकि AIFs के बारे में एक तो इन्फॉर्मेशन थोड़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि APMI की वेबसाइट पे पीएमएस के बारे में तो सारी इन्फॉर्मेशन जाती है इनके बारे में। और आई डोंट वांट टू गो, क्योंकि अब मैं पीएमएस के साथ जाता भी हूँ ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब पीएमएस अभी उतना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो जब आप मेरे साथ आओगे ना, तो मैं ये देखता हूँ कि आई मेक माई क्लाइंट स्पीक टू डायरेक्टली द फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टमेंट टीम, तो मैं वो कॉन कॉल या जूम मीटिंग करता हूँ। तो वहाँ पे जो मतलब रिलेशनशिप मैनेजर से बात होती है, तो उतना नहीं, रिलेशन मैनेजर मेरे नहीं, मैं खुद भी रिलेशन में, देखिए निकुंज जी, मेरा एक स्टाइल ऑफ वर्किंग कैसा है ना, कि मैं इंडस्ट्री में 18 साल से हूँ, मेरे जो इन्वेस्टर यहाँ पे है वो अगर 200 करोड़ का बुक है ना, वो 70 क्लाइंट से है, 70 क्लाइंट को मैं जानता हूँ पिछले 16 साल से, तो वो ट्रस्ट बेसिस पे मैंने इतना बिल्ड किया है। तो मैं यहाँ से आपको जिस भी बात होती है, तो मैं कंफर्ट पे आने के बाद फिर हम लोग उसकी इन्वेस्टमेंट टीम, अगर आपने आइडेंटिफाई किया हाँ ये अच्छा लग रहा है, आई हैव टू हियर फ्रॉम देम व्हाट आर द फ्यूचर आउटलुक, फिर विल हैव अ जूम मीटिंग अलोंग विद द टीम। ये मेरा प्रोसेस ऑफ वर्किंग है, मैं ऐसे ही काम करता हूँ, ताकि आपका पैसा लग रहा है, आपका पूरा विजिबिलिटी, आपको जो मेन बंदा है जो मैनेज करेगा या जो टीम है उससे बात करके आपको समझना जरूरी है कि अमाउंट छोटा नहीं है, ठीक है। So that I'll take care. See, so for the moment, I'm looking to invest about 2.5-3 crore in this AIF. Okay. The idea is that if the AIF were to do well, if the NAV were to increase as per my expectations, then I can, of course, pump in more money. I mean, after 3 months, 6 months, 1 year, I can pump in more money. Yeah, no worries. तो मैंने अपने पीएमएस में भी वही करा है कि मेरे पीएमएस ने मतलब मेरे को मांगा था मतलब 1 करोड़, वो मैंने दे दिया, मतलब उसका मिनिमम 1 करोड़ ही था मेरे पीएमएस का। अभी उसने मतलब अभी तो मार्केट्स मतलब गिरे थे ना, मतलब अभी मतलब इतनी न्यूज आई थी ना, मतलब ये मतलब हो गया, वो तो रिफॉर्म्स हो गए, वो तो मैंने उनको और 1 करोड़ दे दिया था। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि मतलब कि और वो मांगेंगे तो मैं आगे दे दूंगा, पर वो परफॉर्म करना चाहिए।
एआई से भी मैं ऐसे ही चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई ऑप्शन रहे कि मतलब कि मैं आगे अगर जरूरत पड़े मतलब मेरे को लगे कि हाँ ये अच्छा है नहीं, इसमें कैसे है ना, ये और इसमें इन्वेस्ट क्या कर। होता है ना कि जब इन लोग स्टार्ट करते हैं ना, जब ड्रॉ डाउन होकर पूरा पैसा खत्म हो जाता है ना, 1,000 करोड़ अगर ले रहे तो 1,000 करोड़ हो गया, फिर अगर राइट, उनके पास और भी पाइपलाइन फिर वो नहीं कंपनी ले है ना, सकते। तो फिर नहीं, फिर वो दूसरा फंड लॉन्च करते हैं जिसमें वो अलग कंपनी राइट, रहेंगे। तो हमको अगर अच्छा लगता है राइट, इनका परफॉर्मेंस, तो वी कैन पार्क मोर मनी विद देम इन देयर सेकंड फंड। दैट्स व्हाट राइट। तो हैपेंस, वो ऐसे ही money होता is not a problem. I mean, I can है। नो also वरीज, नो वरीज। get some money out of the stock that I've invested directly into. No और worries. आपने We दूसरा can have. मतलब So we will. I'll find out something, and then I'll discuss with them, and then if I like it, and then I'll share with you, and if you also like it, then both of us will come on a call with them to understand much And more in detail. Yeah. just one last question. Hmm. I mean, do you think now is the right time to invest? Because I've invested a lot of money, right? I mean, based on the news, I mean, over the last 1 year. So, I mean, over the last 1 month, I mean, सिर्फ 1 month में बहुत सारी न्यूज आई ना, जीएसटी हुआ, मतलब रिफॉर्म्स हुए, मतलब कितना न्यूज आया, but markets तो वहीं के वहीं है. तो do you think it's the right time to invest? Do you think I mean, one should wait for 3-6 months I mean, to invest? No, but then see, if you see now the flows of money from DII is huge. If you see mutual fund Right. data, पर whatever FII तो data, निकाल रहे हैं जब FII ने सर 13 बिलियन निकाला, इंडिया ने DII ने 21 बिलियन एंटर किया है, तो मतलब वो रिस्क चला गया है। उसका सेंटिमेंट तो नहीं बढ़ रहा है ना, नहीं, उसका सेंटिमेंट sentiment तो नहीं खराब चेंज ही हो होगा, रहा है. उसकी वजह है ना, जीएसटी तुम कम करोगे, जो आपका जो कंजम्पशन सेक्टर है वो कंज्यूम Right. करना जब स्टार्ट करेगा, जब उसको तुम टैक्सेस में कुछ बेनिफिट करोगे। आपने कॉर्पोरेट का टैक्स कम कर दिया, आपने जीएसटी कम कर दिया, लेकिन कॉर्पोरेट ये Right. बोलता है कि मैं कैपेक्स तब करूंगा जब मुझे आप डिमांड बताओगे। आज की तारीख में मेरे, अगर आप बोलते हो कि मैं 1 लाख गाड़ी बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ऑटो का इंडस्ट्री, तो आप बोलोगे आपकी Right. 10 लाख गाड़ी बिकेगी 10 साल बाद, तो मुझे आज का 1 लाख का डिमांड तो बताओ, तब जाके तो मैं कैपेक्स करूंगा। आज मेरी अर्निंग हुई तभी तो मैं अपनी फैक्ट्री सेट करूंगा ना, आज के पैसे से फॉर फ्यूचर। तो आपके मार्केट तो हिसाब से अफोर्ड। कितना टाइम वेट करना चाहिए मार्केट सर कब मुझे टर्न करेगी? देखिए, तो अभी आप बोल रहे हो मार्केट को आप कि टाइम immediately कभी नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आप नहीं वेट नहीं, करना है ना, मार्केट को आप तो कभी अभी टाइम नहीं कर सकते सर। मैं आपको, मेरा तो एडवाइस यही है कि इंडिया के, आज आप पूरा डेटा निकालो, इमर्जिंग मार्केट में इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आज की तारीख में सब जन इंडिया की तरफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड ह्यूज अमाउंट विच इज FII से कमिंग सारे इन। साउथ कोरिया जा रहे हैं, ताइवान जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, चाइना सर जा रहे लेकिन एफआईआई का तो कोई ये नहीं है ना, वो तो कभी भी जंप करके कहीं पे भी चला जाएगा। हमको डोमेस्टिक हैं. फ्लो पे, रुपी हमारा जब डोमेस्टिक depreciate फ्लो कर आज रहे हैं, से मतलब 10 रुपी साल जब पहले तक अलग था। depreciate करता रहेगा ऐसे ही, मतलब तो फिर सर कौन आएगा, मतलब आप बोलो ना सर, taxes 80,000 का। ज्यादा है. नहीं सर, आज से 15-20 साल पहले सेंसेक्स कहाँ पे था, तभी एफआई कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। आज अगर सेंसेक्स में एफआई के इम्पैक्ट होता ना, तो जितना उन्होंने पैसा निकाला ना, तो आज 80,000 पे नहीं रहता था मार्केट आज 60,000 पे आ गया होता, अगर उससे इम्पैक्ट नहीं, आता। वो मैं समझ रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं वो मैं समझ रहा हूँ. मैं भी ऑफकोर्स कोई भी इन्वेस्ट करेगा वो इंडिया में पॉजिटिव होगा तभी वो इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि और इकोनॉमी तो बढ़ेगी, मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए. तो मार्केट और इकोनॉमी का कोरिलेशन हमेशा नहीं होता ना, कि चाइना में भी नहीं रहा है, मतलब जरूरी नहीं कि इकोनॉमी बढ़े तो मार्केट भी बढ़ेगा ही. अच्छा, एक चीज बताइए, कब मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? इसके लिए मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्प चाहिए होगी. सर देखिए, मैं आपको ये एडवाइस, देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, आप जो लमसम डालना बोल रहे हो ना, आपको अगर ये कैटेगरी में जा रहे हो ना, तो आप वो ट्रेंचेस वाले में जाइए। बीच में जब अपॉर्चुनिटी होगी ना, तो पैसा आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है ना कि भाई आपको, कैटेगरी सी में ऑप्शन होता है कि होता है ना, कैटेगरी में होता है ना ऑप्शन, क्यों नहीं होता? कैटेगरी में ऑप्शन होता है। लॉन्ग ओनली एस में होगा, मतलब हाँ, लॉन्ग ओनली ब्लेंडेड वाला होगा। आपको जो पैसा जैसा देना है, आप वो उसको डिवाइड कर, अगर 3 करोड़ इन्वेस्ट करे तो डिवाइड करके करो 30%, सो दैट यू कैन कैप्चर द मार्केट। योर फ्लो विल बी 12 to 15 मंथ्स के अंदर डिवाइडेड होगा, तब तक आपको एवरेज आउट चलिए वो देख लेते हैं. आप मेरे को भेजिए, मतलब वो श्योर। इन्फॉर्मेशन. हाँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे को भेजता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, टाइम लो जितना आपको लेना है. ठीक है।